السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مارچ کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکی عہدیدار کانگریس کے سامنے شہادت کے لیے پیش ہوتے رہتے ہیں۔ ہم اسے اپنی ذمہ داریوں کا اہم حصہ سمجھتے ہیں، جس کے ذریعے ہم کانگریس کو پالیسی سازی اور نگرانی کے عمل میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ وہ جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کی پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے کانگریس میں 20 مارچ کو سماعت میں شہادت کے سوال پر رد عمل دے رہے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈونلڈ لو سے متعلق عمران خان کی طرف سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ کانگریس کمیٹی کی سماعت پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان اس معاملے سے آگاہ ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور تمام معاملات پر تعمیری روابط پر یقین رکھتا ہے۔ امریکی سینیٹر کرس وان لین نے وائس آف امریکہ سے خصوصی بات کرتے ہوئے پاکستان کے انتخابات اور پاک امریکہ تعلقات سے متعلق امریکی کانگریس میں 20 مارچ کو ہونے والی سماعت کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ کانگریشنل سماعت امریکی سیاستدانوں کو محکمہ خارجہ کے نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو سے سوالات پوچھنے اور انہیں جواب دینے کا موقع فراہم کرے گی۔ پاکستان کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق امریکی سینیٹر کا کہنا تھا کہ انتخابی دھاندلی کے الزامات کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان میں امریکی مشن کے قائم مقام ترجمان تھامس مونٹگمری نے بتایا ہے کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں علاقائی سلامتی پر حکومت پاکستان کے ساتھ شراکت داری، IMF کے ساتھ مسلسل اقتصادی اصلاحات کے لیے امریکی حمایت، تجارت اور سرمایہ کاری، تعلیم، موسمیاتی صورتحال سمیت دو طرفہ امور پر بات چیت کی گئی۔ سفیر بلوم نے پاکستان کی جمہوریت اور آزاد پریس کے کلیدی کردار کے لیے امریکی حمایت کا اظہار کیا۔ IMF مشن اور پاکستانی حکام کے درمیان اسلام آباد میں بظاہر اسٹینڈ بائی معاہدے کے دوسرے جائزے پر مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ اسٹینڈ بائی پروگرام جو اپریل میں ختم ہونے جا رہا ہے، اس سے متعلق پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے دیے گئے تمام اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ تاہم دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات میں اصل توجہ اگلے 3 سے 5 سالوں کے لیے 6 سے 8 ارب ڈالر کے نئے پروگرام پر مرکوز ہے، جس کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان بات چیت کے ایک نئے دور شروع ہونے پر اتفاق رائے نظر آتا ہے۔ بھارتی حکومت نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے نفاذ پر امریکہ کی جانب سے جائزے کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ شہریت ترمیمی قانون شہریت دینے کے بارے میں ہے، شہریت چھیننے کے بارے میں نہیں ہے۔ اس سے قبل اس سوال کے جواب میں کہ کیا CAA قانون بھارت میں مذہبی آزادی کو متاثر کر سکتا ہے، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا تھا کہ ہمیں تشویش ہے کہ ہم اس قانون اور اس کے نفاذ کے عمل کا قریبی جائزہ لے رہے ہیں۔ بھارت کی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں گزشتہ 5 برس کے دوران سیاسی جماعتوں کو چندہ دینے والوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کی کئی بڑی کمپنیوں نے سیاسی جماعتوں کو کروڑوں روپے چندہ دیا ہے۔ جنوری سن 2018 سے جنوری سن 2024 تک سیاسی جماعتوں کو 120 ارب روپے چندہ دیا گیا، جس کا تقریباً 55% وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کو ملا ہے۔ سینتیاگو مارٹن کی غیر معروف کمپنی فیوچر گیمنگ اینڈ ہوٹل سروسز نے 5 سال کے دوران
13 अरब 68 करोड़ रुपए चंदा दिया है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने अफगानिस्तान में इंसानी हकूक के एहतराम से मुताल्लिक एक करारदाद जुमेरात को मंजूर की। करारदाद में अफगानिस्तान में जाबिराना माहौल का बतौर खास जिक्र किया गया है, जिसमें सरेआम फांसी और खवातीन के खिलाफ तशद्दुद भी शामिल है। पार्लियामेंट ने अफगान हुक्काम पर जोर दिया है कि वो सजाए मौत को खत्म करें और फौरी तौर पर सरेआम फांसियों और वहशियाना जुल्म सितम और इम्तियाजी पॉलिसियों को रोकें। उन्होंने कहा कि वो तालिबान से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर अवामी जिंदगी में खवातीन और लड़कियों की मुकम्मल और मुसावी शिरकत को बहाल करें। इसमें खासतौर पर तालीम और काम तक रसाई जैसे मामलात शामिल हैं। हमास ने गजा में जंगबंदी के लिए अपनी शराइत मुज़ाकरातकारों और अमरीका को पेश कर दी हैं। इन शराइत में इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की तजवीज़ भी शामिल है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक हमास का कहना है कि पहले मरहले में इसराइली औरतें, बच्चे, बूढ़े और बीमार यरगमाली रिहा किए जाएंगे, जिनके बदले 700 से 1000 फलस्तीनी कैदी रिहा करवाए जाएंगे। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए मिस्र और कतर मुसालहत कराने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के ऑफिस का कहना है कि हमास की नई शराइत गैर हकीकी मुतालबात पर मबनी है। अमरीकी सेनेट में अक्सरियती लीडर चक शूमर ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो गजा में बमबारी के दौरान अपना रास्ता खो चुके हैं, लिहाजा इसराइल में फौरी तौर पर नए इंतखाबात होने चाहिए। चक शूमर का शुमार अमेरिका में आला तरीन यहूदी ओहदेदारों में होता है और वो इसराइल के देरीना हलीफ हैं। जुमेरात को सेनेट में अपने खिताब में शूमर का कहना था कि नेतन्याहू के इक़दामात की वजह से इसराइल के आलमी सतह पर तन्हा होने का खदशा है। चक शूमर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए अमेरिका में इसराइल के सफीर माइकल हर्ज़ोग ने कहा है कि यह बयान हमारे मुश्तरका अहदाफ के खिलाफ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में हर्ज़ोग का कहना था कि इसराइल एक खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क है, लिहाजा ऐसे बयानात किसी सूरत मददगार नहीं हो सकते। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा है कि शिमाली गजा में इंसानी इमदाद के मुंतज़िर शहरियों पर मुसल्लह फलस्तीनियों ने जुमेरात को गजा शहर में उस वक्त फायरिंग की जब गजा के शहरी इमदादी काफिले की आमद इंतजार कर रहे थे, जबकि हमास के ज़ेरे इक़्तिदार इलाके की वज़ारत सेहत ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इसराइली फौजी इस फायरिंग के ज़िम्मेदार हैं। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अस-सीसी ने कहा है कि मिस्र गजा में जंगबंदी के लिए एक मुआहिदे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत इमदाद पहुंचाने के अमल में इजाफे और इलाके के जुनूब में बेघर होने वाले लोगों को शिमाल की तरफ जाने की इजाजत देना शामिल है। सीसी ने रफा शहर में इसराइली दरअंदाजी के खतरे के बारे में भी खबरदार किया, जहां एक अंदाजे के मुताबिक 15 लाख अफराद मिस्र के साथ गजा की सरहद के करीब पनाह हासिल किए हुए हैं। इमदादी एहलकारों ने साहिली इलाकों में कहत के खतरे से खबरदार किया है। सीसी ने एक मिलिट्री एकेडमी के दौरे के दौरान रिकॉर्ड किए गए एक पैगाम में कहा कि हम गजा में जंगबंदी के मुआहिदे तक पहुंचने के बारे में बात कर रहे हैं। तुर्किया के एक मकामी गवर्नर के दफ्तर ने जुम्मे को बताया कि तुर्की के साहिल के करीब बहरे एजियन में कश्ती उलटने से कम 8 तारिकीन वतन डूब गए हैं। मुतासरीन की कौमियत का अभी तक पता नहीं चल सका है। हुक्काम ने बताया कि 2 अफराद को तुर्क साहिली मुहाफिजों ने बचा लिया है, जबकि 2 खुद ही पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। हुक्काम ने बताया कि तलाश और बचाव ऑपरेशन जारी है। तुर्किया तकरीबन 40 लाख पनाहगज़ीनों की मेजबानी कर रहा है, जिनमें बेशतर शामी हैं। रूस में सदारती इंतखाबात के लिए 3 रोजा वोटिंग का आगाज हो चुका है। इस इलेक्शन में मौजूदा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अपने 3 हरीफों के खिलाफ जीत यकीनी है, जिनमें से किसी ने भी उन पर तनकीद नहीं की।
यूक्रेन के तनाज़े में रूस की भरपूर हिमायत के बायस मुल्क में पुतिन की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। रूस की वजारत दिफा ने जुमे को कहा कि उसकी अफवाज ने जुमेरात को रूस के बेलगराड इलाके पर सरहद पार यूक्रेन से हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया है। एक बयान में वजारत ने कहा कि यूक्रेन ने सरहदी गांव कोजिनका के करीब 30 फौजियों को उतारने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें रूसी फौजियों और सरहदी मुहाफिजों ने पसपा कर दिया। यूक्रेन के हुक्काम ने जुमे की सुबह कहा था कि रूस के 2 सरहदी सूबे बेलगराड और हमसाया कर्स का इलाका यूक्रेन में मुकीम क्रेमलिन मुखालिफ रूसी मुसल्लह ग्रुपों के हमलों की जद में है। बेलगराड के इलाकाई गवर्नर विया चेस्ला वेगलार्डकॉफ ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक बयान में कहा कि कोजिनका गांव में 2 अफराद हलाक हुए हैं और शदीद नुकसान पहुंचा है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक यूक्रेन ने बताया है कि रूसी अफवाज ने बहर अस्वद के बंदरगाही शहर ओडिशा पर मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें एक पैरामेडिक और एक इमदादी कारकुन समेत 1 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगदिशु में एक होटल पर अश-शबाब के अस्करी पसंदों का मुहासरा 13 घंटे ज्यादा देर तक जारी रहने के बाद जुमे की सुबह खत्म हो गया। एक पुलिस अफसर अब्दुर्रहीम यूसुफ ने AFP को बताया कि जुमेरात को देर गए शुरू होने वाले इस हमले ने अलकायदा से मुंसलिक जिहादी ग्रुप के तशद्दुद पर काबू पा लिया। तमाम मुसल्लह दहशतगर्द मारे गए हैं और अब हालात मामूल पर आ गए हैं। हमले की जिम्मेदारी शबाब ने एक मुख्तसर बयान में कबूल कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाकाई तनाज़ात और मौसम की खराब सूरत हाल की वजह से दुनिया भर के 45 ममालिक और खित्तों को खुराक की बैरूनी इमदाद की ज़रूरत है। इनमें से 33 अफ्रीका में, 9 एशिया में, 2 लातीनी अमरीका और कैरिबियन में और 1 यूरोप में है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बेहतर जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।